we have seen what is the meaning of correspondence, right? The correspondence from set A to set B, it can go from A to B flow or B to A flow is called the correspondence. As well as we know that the function, right? The function, each and every element of set A has a unique image in set B or unique mapping in set B is known as function. Or also we know that when this will not be a function. The first case when this will not be a function, if there are two sets A and B, right? And there a correspondence or rule says that elements of A are there, naming A, B, C, D, right? The different elements are there, right? Any element in set A having two images in set B. If something like this is happening, so this is not a function, right? Similarly, in second case, if I'm saying like A, B, C, D, E, let A to B, and there is a rule or a function or correspondence from A to B, such that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? A, B, C, D, and there's an element E, at least element E that have no image in set B, right? No image in set B and no correspondence from A to B. So these two are the perfect example when we can say these are not function, right? These are not function. So starting from this point only, right? So the types of function, or you can just see the functions by different ways, right? First is called the correspondence, right? Second is known as algebraic, right? Third, ordered pair. Right? Fourth, calculus. And the fifth is graph. Right? These are the different way when we can say like the given correspondence or given flow or given mapping is a function or not. Right? So for correspondence or with the flow or the mapping, right? Write down everyone. If F denotes a rule of correspondence, F denotes the rule or correspondence by which every element X of a set A there correspond one and only one element of Y of set B. So ये लाइन रिपीट कर सकते हैं? सर वो मुझे ज्वाइन करने नहीं दे रहा था, ये जस्ट ज्वाइन किया मैंने, आपने बस इतना ही बताया है। फिर से एक बार लिखते हैं। If F denotes a rule of correspondence by which every element X of a set A there corresponds one and only one element of Y of set B, means let this is a set A and there is a set B. The element of set A is known as X and elements of set B is known as Y. So each and every element of set A has a unique image in set B.
right? These F correspondence is known as the function and denoted by y is equals to fx. When we'll put the values of x, you'll get values of y, right? So this is correspondence or the function, right? And in the mapping itself, we can say y is equals to x plus 2 such that n belongs to n. Means when we are putting natural number in place of x, the correspondence or mapping is giving the natural number. So we can check this, right? Set A, and this is set B. Natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on, and so on, right? For 1, I'm getting 3. So mapping is 1 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 7, 6 to 8. So obviously this is satisfying both the condition, each and every element of set A having a unique image in set B, right? Having unique image in set B, and no element of set A is left out or not giving the image. So satisfying all the conditions. So this is known as the function. So this is known as the function, right? What if I'm saying, second case, try yourself, y is equals to x minus 2 n2 such that n2 n. F is such that, this is read as F is such that natural number to natural number. This natural number is for set A, these natural number is for set B, right? Element of set A and set B. By the correspondence, by the mapping, we can easily judge that this is a function or not. No, sir. Sir. No, sir. Right? क्योंकि सेकंड कंडीशन जो मेरे पास है वो यहाँ void हो जा रहा है, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि if I'm giving the natural number like with the mapping itself, set A and set B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? For 3, I'm getting 1, for 4, 5, 6, and so on. But there are two elements in set A that having no image in set B, so this is not a function, right? दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, जल्दी से आप चेक करके बताओगे. y is equal to x square such that f is I to n. Second, y is equal to x square, f is such that I to w. चैट में लिखना पसंद करोगे आप लोग, अच्छा रहेगा. सर फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है. चैट में लिखेंगे बेटा प्लीज. ओके सर, सॉरी सर.
ओके, फर्स्ट इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि x की मेरे पास -1 and 1 दोनों वैल्यूज हैं, बट सेकंड इज अ फंक्शन, जीरो भी मेरे पास इंटीजर्स में जीरो भी आएगा जो कि नेचुरल नंबर को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट सेकंड में होल नंबर के लिए ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, होल नंबर्स हैं तो स्क्वायर होने के बाद नंबर वहीं पर आने, राइट? तो दिस इज not a function, but this must be a function, right? So now we know that the corresponds from y is equal to fx, right? Y is equal to fx की बात हो रही हो, right? And y is equal to fx, f is such that a to b, right? So this a is known as domain of the function and b is known as codomain. ये range नहीं होता, right? Codomain of the function. A is called the domain and B is called the codomain of the function, right? And what is range? The correspondence or what numbers we are getting is known as the range. Not every time you are getting each and every numbers of codomain, right? यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो तो दो नंबर यहाँ लेफ्ट आउट हैं जो रेंज में नहीं है बट कोडोमेन में है. कोडोमेन मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, and range means the correspondence or the mapping from A to B and each and every element of set B that's involved in the mapping are known as range. Means अगर मैं यहाँ पर A to B function को define कर रहा हूँ, right? Like this is A, B, C, D, E. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, let E, right? So domain of the function will be discrete value के लिए curly bracket here A, B, C, D, E, right? Codomain of the function is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Range is 1, 2, 3, 4, right? ये मेरे पास कोडोमेन एंड रेंज की बात हुई. सर लेकिन उसमें जो एक्स स्क्वायर था उसमें तो हम लोग को दो वैल्यूज के लिए वाई में एक वैल्यू मिल रही है ना, तो वो थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन से? ए टू बी दो वैल्यू हो, मतलब ए के एक एलिमेंट के लिए बी की एक ही वैल्यू हो सकते हैं ना. अच्छा हाँ. अच्छा ये जो आपने ए टू बी वाला जो फंक्शन बताया उसमें रेंज 1 से 4 मतलब बेटा ये तो पहला 1 से 4 नहीं है, गलत स्टेटमेंट ये रहा. दूसरा अभी तुरंत बताया, 2-3 बार करस्पॉन्डेंस और मैपिंग करके बताइए. आपको बात क्या बताई? जो भी इन्वॉल्व होगा मैपिंग में, जो करस्पॉन्डेंस में मैपिंग होगा उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं. कौन कौन से एलिमेंट हैं जो करस्पॉन्डेंस में है इन बी, सेट बी? 1 2 3 4, इसलिए उसको रेंज बोला. कोडोमेन में कौन से एलिमेंट होने थे? सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो, तो जितने भी एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है सेट बी में, वो पूरे लिखे हुए हैं, राइट? डोमेन कौन सा होगा? तो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे डोमेन. ओके, नाउ तो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग आते हैं डोमेन पे, राइट? डोमेन और रेंज की बात होती है, को डोमेन आपको गिवन होता है, राइट? सो डोमेन फर्स्ट इज when any function is in the under root, or more precisely I can say any function fx to the power 1 by 2n, then fx must be greater than equal to 0, right? For these two cases, when fx having power 1 by 2n plus 1, to no worry, fx belongs to R, right? First thing.
Second, we know that 1 by fx, so 1 by 0 is not defined, so fx must not be equal to 0, right? Third, right, in log fx with a base gx, if it is given, then this will be fx greater than 0, gx greater than 0 and gx not equal to 1. ये basics है जो already आप जानते होंगे, but फिर भी write it down. Only based on this, just we are starting, right? Start. First question. What is you asking, Ninad? So, sir, so range would be the set of codomain. Yes, very true, beta. अभी आऊँगा range पर, अभी domain हम लोग देख रहे हैं, ना? Yes. अभी देखते हैं last 1 minute.
सभी के लिए है। ओके, जस्ट एक क्वेश्चन मैंने डोमेन को बताने के लिए लिया था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, दैट्स द रीजन आई हैव टेकन। सबके आंसर्स भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस के, ये आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट सबके आ रहे हैं, राइट। सो लेट्स होप सभी का सही हो, राइट। सो मेक द नंबर लाइन, this will be 0 at plus minus 2, so this is minus 2, let there will be plus 2, this will be plus minus 1, but this is again at 0 1 0 at 1, and this is 0 at minus 3, right. So obviously if we will put any value greater than 200 200, so this will be negative, all these are positive, so this will start with negative, so this will be positive, there's even sign, so this will be positive negative positive negative. What we required, if this is in the under root, so under jo bhi quantity hogi, this must be greater than equal to 0, right. So positive part, right. So this will be minus 3 to minus 2, minus 3 obviously open, minus 2 must be close, union minus 1 to 1, minus 1 closed, 1 open, union 1 to 2, 2 open, and 2 closed and 1 open, right. So let's see कितने लोगों के सही रहे। यस सर यही है। जितने लोगों ने मुझे भेजा था उनमें से किसी का सही मेरे को नहीं दिख रहा। केयरफुल, राइट, गड़बड़ होने के चांस होते हैं, तो बी केयरफुल। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर वी हैव टू कम, राइट। अलग से मैं आऊंगा डोमेन पर, बट उसके पहले सर लेकिन 1 पे तो ये मतलब ओपन ब्रैकेट क्यों है 1 पे? वहाँ पे तो ऊपर उसमें 0 हो रहा है ना, नीचे भी बेटा 0 हो रहा है, ध्यान से देखो, 2 to the power x minus 2 पे, हाँ ठीक है। सी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं इसे, नो प्रॉब्लम। देखो पहले हमने नंबर लाइन बनाया, राइट, ये 0 हो रहे हैं प्लस माइनस 2 पे, तो मैंने वो मार्क कर दिया। ये प्लस माइनस 1 पर 0 हो रहे हैं, वो मैंने मार्क कर दिया, राइट। ये 1 पे एक बार और 0 हो रहा है, तो एक बार और मैंने मार्क कर दिया। ये -3 पे 0 हो रहा है, तो ये मैंने मार्क कर दिया। ये पूरा नंबर लाइन मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, राइट। अब ये पूरा नंबर लाइन मार्क करने पर अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गया कि ये देख पाऊं कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा, राइट। अब ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है उसे देखने के लिए हमने क्या किया कि कोई भी वैल्यूज एक रखी 2 से ग्रेटर, राइट। 2 से ग्रेटर जब वैल्यूज रखी तो देखा कि वो चला जा रहा है नेगेटिव। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो उसे, जो वैल्यूज है वो चली जा रही है 2 से ग्रेटर के लिए नेगेटिव, नहीं, क्योंकि ये 5 to the power minus x है। अब ये नेगेटिव गया, ये पॉजिटिव गया। अब ये 1 पर 2 बार 0 हो रहा है, एक बार ये भी 0 हो रहा है, एक बार ये भी 0 हो रहा है। तो 1 पर क्योंकि ये 2 बार 0 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 से आगे की वैल्यूज के लिए दोनों पॉजिटिव हो गए होंगे, 1 से नीचे के लिए दोनों नेगेटिव हो गए होंगे। तो 1 पर ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सो
लाइक जैसे ये साइन स्केल चलता है वो चला। अब जहां जहां पर पॉजिटिव है केयरफुली उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर। इज इट ओके? ये समझ में आई? राइट, आगे बढ़ सकता हूं? ओके ना, अब यहां से मेरे पास जिस जगह पर हम लोग आ गए, लाइक फंक्शन में डोमेन वी नो दैट f is such that a to b, right? If I'm writing a to b, right? So this a is known as the domain and b is known as the codomain, right? अब अलग अलग फंक्शन मेरे पास हैं, लाइक मैंने कहा f प्लस g है, या फंक्शन f माइनस g मतलब fx प्लस gx है, या fx माइनस gx है, या f बाई g है, ऐसे भी लिखते हैं, मतलब fx बाई gx है, राइट? अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं फंक्शन को, आप जैसे भी लिख दो, राइट? f इंटू जी है, f इंटू जी का मतलब होता है fx इंटू gx, लेकिन यहाँ पर एक और चलता है f इंटू gx, ये कंपोजिट फंक्शन होता है, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट? दिस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f के अंदर जो डोमेन होगा वो gx होगा, राइट? बट बाद में उसे देखते हैं। नाउ अब यहाँ जो मेरे पास आ गया, जो f प्लस g माइनस जो भी हमारे पास रहा नंबर्स, मान लेता हूँ फर्स्ट का डोमेन d1 है, सेकंड का डोमेन d2 है, ऐसे ही d3 d4 सब डोमेन चले जा रहे हैं। अगर ये पूरे फंक्शन का डोमेन मुझे निकालना रहा तो ये होगा d1 इंटरसेक्शन d2, d1 इंटरसेक्शन d2। पहले का डोमेन निकाला, दूसरे का डोमेन निकाला, दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वही आपका आंसर होगा। ये प्लस में रहे, मल्टीप्लाई में रहे, डिवीजन में रहे, जहां पर भी फॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में बात करेंगे, ये सब की अभी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जहां पर भी आप पहुंच के आ रहे हो वैसे ही अकॉर्डिंगली आपके पास वर्किंग होती जाएगी, राइट? अगर f ऑफ gx की बात हो रही है तो पहले इसे सेटिस्फाई करना चाहिए और फिर इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अंदर से बाहर आपको सेटिस्फाई करते हुए फंक्शन को निकलना चाहिए। तो डोमेन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ऑब्वियसली हमें करना क्या होगा, d1 d2 d3 सबके डोमेन निकाला, फिर d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 इंटरसेक्शन dn। अगर मैं ये कर डालता हूं तो ये जो d मेरे पास आ रहा है, दिस इज द डोमेन ऑफ कंप्लीट फंक्शन का, एक बार में आपने डोमेन की बात की। इज इट ओके? नोट डाउन एवरीवन। सर Next is graphical representation of graph, right? Graphically कैसे आपको पता चलेगा, right? Graphical representation of graph, right? How to know, like with the graph we can say that this is a function or not, right? It's a very simple thing. See, like मैंने एक कोई भी ग्राफ आपको दे दिया, something like this, right? When we are drawing a line parallel to the y-axis and it intersects the graph once only, so this is known as function. पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने लाइन लिए एंड वो ग्राफ को केवल एक बार ही अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो दिस इज नोन एज फंक्शन फर्स्ट। बट सेकंड केस व्हेन आई एम सेइंग कि लाइक दिस इज गिवन एंड वी आर ड्राइंग अ लाइन, at least a line is there that intersect the graph more than once, then this is not a function, right? ये सेकंड वाले केस में फंक्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाले केस में फंक्शन होगा। बहुत सिंपल बात चल रही है क्या कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हो रही है सेकंड केस में, बट फर्स्ट केस में x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो रही है, राइट? सो फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन में काउंट होगा, सेकंड वाला हमारा फंक्शन में काउंट नहीं होगा।
right? Graphical representation of function. Draw parallel lines, right? With parallel line to the y-axis. At least one line is there that intersect the graph more than once. Right? And obviously, और अलग-अलग जो graph होते हैं, all we know the graph of the functions, right? Now, तब यहाँ पर कहानी ये आ गई कि डोमेन जब हम लोगों को निकालना है तब कैसे रहेगा। तीन चीजें हम लोगों ने सिर्फ देखी हुई है, उसी पर बेस में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। सेकंड, फोर क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 minutes. Your time start now. Right? X is less than equal to 1 by 4 to the power 3, right? So from this we are getting x is less than this value, but again we have to see like when this will exist. So for existence, right, I'm starting from this, like from inside out I'm coming. In the question it was given, right? So first, if log is there, so for this I'm saying x must be greater than 0, right? For log is inside of this, so this must be, right? So log of x with a base 1 by 4 must be greater than 0. So x will be less than 1 by 4 to the power 0, that is 1. Again, log with a base 3, log with a base 1 by 4, this greater than 0. So 3 is going there, so log 1 by 4, right? Log 1 by 4 with the x is greater than 1 or x less than 1 by 4. राइट, ये भी कंडीशन मेरे साथ ही साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आई एम गेटिंग x लेस देन 1, यहाँ से ग्रेटर देन 0 ये आ रहा है, यहाँ से x लेस देन 1 by 4 आ रहा है। नेक्स्ट, इफ यू गो फ्रॉम दिस, राइट, अगेन तो 2 to the power 0 1, तो log 3 with a base 1 by 4, x greater than equal to, just the answer is coming, जो भी अगले वाले जो हमने पेज पे लाया था वो हमारे पास greater than equal to 1 3 1 by 4 to the power 3 64 less than 64। तो अब मेरे को तो ये पूरे के पूरे सबको एक साथ सेटिस्फाई करने वाले चाहिए। तो एक मेरे पास आ रहा है x greater than 0 के लिए, राइट। सेकंड मेरे पास आ रहा है x less than 1 के लिए, राइट, दिस इज 0 दिस इज 1। थर्ड मेरे पास आ रहा है 1 by 4 के लिए, राइट। फोर्थ मेरे पास आ रहा है 1 by 64 के लिए। तो सभी को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा मेरे पास पॉइंट्स आ रहा है? तो आई गेस कितने लोगों के आंसर आए हैं देखो। नहीं, फर्स्ट का तो आंसर सही नहीं लग रहा सभी का। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है आई गेस।
हाँ, सर आंसर x लेस देन 1 by x लेस देन इक्वल टू 1/64 ही है ना? उसके साथ में भी बेटा एक और आ रहा है, ध्यान से देखो, x greater than 0. x ग्रेटर देन 0, 0 भी आ रहा है और 1/64। हाँ सर वही आया है। हाँ सर वही आया. वेरी गुड, राइट, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। सेकंड पर आऊं। सेकंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट, where you can see this कि sin pi x, राइट। जब अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएंगे sin pi x must be greater than equal to 0, राइट। पहली बात तो अंडर रूट के अंदर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस थोड़ा सा बेसिक से बात करता हूँ कि आगे आपको आसान हो, पहले भी कर चुका हूँ बट फिर भी देखता हूँ एक बार। अगर मैंने ये कहा होता कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम लोगों ने ग्राफ देख रखा है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन से कि ये कुछ ग्राफ मेरा ये बन रहा है, राइट। 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, ये साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया ये 0 से पाई तक जाएगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू जा रही है वो 0 से लेके पाई तक जानी चाहिए। और 0 से पाई फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये रिपीट करता है अपने आप को, तो मैं बोल सकता हूँ ये 2n पाई दोनों तरफ ऐड मैं कर दूं तब ये होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक, राइट। 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई दोनों तरफ मेरे पास ये होना चाहिए, तभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये इट विल वर्क, राइट। सो ये पूरी वैल्यू पाई साइन पाई एक्स lies between 2n pi to 2n plus 1 pi, पाई कैंसल करूं तो साइन पाई एक्स लाइज बिटवीन 2n to 2n plus 1, बट ये साइन थीटा है। कोई भी साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो n की वैल्यू जो यहाँ पर है इंटीजर्स है, तब के लिए व्हाट आई एम सेइंग कि n की वैल्यूज अगर मैंने 0 रखा होता, अगर n 0 होता तो मेरे पास यहां से रिड्यूस में ये कर पाता कि साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, एंड अगर मैंने -1 कर दिया होता तो साइन की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होती, तो आई एम सेइंग कि केवल -1 होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पर के लिए कि n की वैल्यूज को एक बार मैंने 0 अगर रखा तो n 0 रखने पर साइन थीटा जो है वो 0 से 1 के बीच आ गया। अगर n की वैल्यूज को मैंने -1 रखा, क्योंकि उसके अलावा कोई भी वैल्यूज रखूंगा 1 रखा तो वो 2 से 3 चला गया, साइन थीटा कभी 2 से 3 नहीं हो सकता। लेकिन सी ये वैल्यूज छुटने के हमेशा चांस होते हैं व्हेन यू आर पुटिंग n इज इक्वल्स टू -1। जैसे आपने n को -1 पुट किया तो ये साइन थीटा पूरा -2 से लेके -1 के बीच में वेरी कर रहा है। अगर ये -2 से लेके -1 के बीच में वेरी कर रहा है तो 100% मैं बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई करेगी करेगी। तो मेरे पास दो बातें हो गई, फिर से फर्स्ट वही आ गया मेरे पास पाई एक्स, राइट। दिस पाई एक्स लाइज बिटवीन 2k pi to 2k plus 1 pi, और साइन पाई एक्स -1 होने का मतलब है पाई एक्स की वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n यहाँ पर इंटीजर है mn जो भी आप बोल दो। तो इससे पाई कैंसिल होने पर x लाइक बिटवीन 2k to 2k plus 1, एक सॉल्यूशन ये आ रहा है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आ गई 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ब्ला 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 ब्ला, एंड दूसरे वाले से आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2n माइनस हाफ, n की वैल्यूज हमारे पास इनफाइनाइट हो सकती है। तो बहुत सारे वैल्यूज को कंटेन करता हुआ ये आपके पास आंसर है।
कितने लोग का सही था? सर मेरा 2k और 2k प्लस 1 तक आया था, उसके बाद मैंने सोचा नहीं। सर मुझे लगा वो 2 पाई इंटू साइन पाई के पाई एक्स है। सेम 2k से 2k प्लस 1 आया, दूसरा वाला नहीं। ठीक है ना, ध्यान से रखना ना। चलो जल्दी से नोट करो सभी लोग। Go to the third question. Third question is like it's a bit easier than others, right? We know that greatest integer and about the greatest integer function and fraction part function, right? In this greatest integer function minus x, we know that this will be minus of fraction part x, right? X minus greatest integer x is a fraction of this, so 1 by fraction of. And fraction part की problem क्या होती है? When x belongs to any integer, fraction of this will be 0. So 1 upon 0 is not defined. So x must not be equal to integers. So x belongs to R minus all the integers. I guess clear to everyone? Okay. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ऐसे ही कंपोजिशन यहाँ पर भी है। कंपोजिशन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। इसमें बहुत मजेदार बहुत प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत चैलेंज करेंगे, राइट? तो अभी जस्ट स्टार्टिंग किया हूँ, लेकिन ध्यान से देखना, ये काफी आगे तक ये डोमेन कहानी जाती है, राइट? काफी सारी चीजें हम लोगों को चैलेंज कर जाएगी और बता जाएगी। देखते हैं पहले तो अभी जो गिवन है वो। हमेशा कोशिश ये रखो अंदर से बाहर आने के लिए गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। ये अंदर जो गिवन है वो है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। लॉग के अंदर कोई भी चीज होता है तो उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट मुझे इसे सॉल्व करना है, लेकिन साथ ही साथ जो भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी रहती है वो भी मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, राइट? दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब ये दो चीजें हमारे पास राइट, ये दोनों जो है, मेरा पहला वाला जो बोलूंगा वो D1 होगा, सेकंड वाला मेरा कोई D2 होगा। कि D1 और D2 दोनों को एक साथ में सेटिस्फाई करते हुए हमारे को आंसर चाहिए, राइट? फर्स्ट के लिए व्हाट आई एम सेइंग, x 5 माइनस x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू जो है वो 0 से 5 के बीच में होगी। 5 से ऊपर की वैल्यूज के लिए दिस विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये आ गया 0 to 5 में मेरे को, तो ये मिल गया फर्स्ट। सेकंड, व्हाइल सॉल्विंग सेकंड, ये हाफ को मैं इधर ले जाऊंगा, हाफ टू द पावर 0 इज 1, so this is 5x minus x square by 4 less than equal to 1। लेस देन होने का क्या रीजन रहा? क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन है बेस वो 0 से 1 के बीच में है। याद होगा सभी को, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है ये सब चीज, कि अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और सबको एक तरफ ले गया, देन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, राइट? अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि 1 और 4 के बाहर मुझे ये क्वांटिटीज मिलने चाहिए, राइट? दोनों को मर्ज करके मैं देखूं तो मेरे पास बहुत सिंपल सा आंसर आ रहा है 0 to 1। क्लोज और ओपन का हमेशा ख्याल रखना, 1 पर यहाँ पर क्लोज है, 0 जो हमारे पास है वहां पर ओपन है। यूनियन 4 to 5, 4 पर क्लोज है, 5 पर ओपन है। इज इट ओके एवरीवन? सर वो लेस देन Yes, sir. 1/2 क्यों नहीं यही है? है। नई आवाज आया बेटा, फिर से बोले प्लीज। सर 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यों नहीं है? है सर क्योंकि एक मिनट ना, नहीं ठीक है, आई गेस। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, ये चैलेंज ऐसा ही कुछ करेंगे जो कि लाइक यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, राइट? अपने आप को सॉल्वेबल होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इससे टफर होगा।
अभी तक 11th में जितना कुछ पढ़ा है आपने, अभी तक हम लोगों ने ग्राफ और ये सब जितने कुछ अपने देखे हैं, सभी एनर्जी आपको पूरी तरह से यहाँ लगाने होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. तो बी केयरफुल विद दिस, राइट? सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. Under root of 1 minus mod x upon mod x minus 2. Second, sine inverse greatest integer 3 minus 4x square. Third question, one upon under root of mod x minus 1 is in the greatest integer minus 5. Fourth question, log of 1 upon under root of greatest integer cos x minus greatest integer sin x. एक फिफ्थ भी रखूंगा. ये भी सिंपल फॉर्म्स हैं, ये और अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट होंगे, राइट? केयरफुली. Under root of sin x upon under root of 6 plus 35x minus 6x square. Only 5. Right? Maximum 10 minutes. The first one, 1 minus mod x minus 2, right? One minus mod x upon mod x minus 2 greater than equals to 0, right? Make a number line. This shows that 1 minus mod x will be 0 at minus 1 and plus 1, and this will be 0 at minus 2 and plus 2. When putting any value greater than 2, this is negative, then positive, negative, positive, negative. What we required? We required the positive part. So this is the positive part, and here this is the positive part. So minus 2 to minus 1, open, closed, union, 1 to 2, 1 close to open. Hope सभी का सही होगा. Yes, sir. 3 Yes, minus sir. 3 minus 4x square is in the greatest integer. 3 minus 4x square is in the greatest integer. Is in the greatest integer lies between minus 1 to plus 1. ध्यान से देखना, ये भी simple है, but ध्यान से. We know that basically it's coming from minus 1 से बड़ा होना चाहिए, right? Minus 1 से बड़ा होना चाहिए. So 3x minus 4x square कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपने आप में बड़ा होना चाहिए, right? Minus 1 से, क्योंकि minus 1 के नीचे values जा रही होगी, then it will be, but this will be less than 2. Why less than 2? See, greatest integer will be 1, means the value lies between 1 to 1.99 something, you can say, right? So the value lies between 1 to 1.99 something or less than 2. So we are getting something this one, right? By solving, एक बार इसे solve करता हूँ, like second time we'll solve this one. So from this I can say 4x square less than equal to 4 or x square minus 1 less than equal to 0.
So from this, I'm getting between -1 to +1, right? For this, 4x square greater than 1 or x minus half, x plus half greater than 0. So this is minus half and plus half से बाहर जाना चाहिए दोनों तरफ से, right? So -1 to minus half, right? Open, closed, union, half to 1, open, closed. Is it okay? Right? Then go for the third one, right? Greatest integer mod x -1 -5 greater than equal to 0. Greatest integer mod x -1 -5 greater than equal to 0. I guess यही था क्वेश्चन मेरे पास, right? But equality sign 0 की नहीं होगी क्योंकि this is in the denominator. So mod x -1 greatest integer -5 greater than 0, right? Or we can say from this key mod x -1 is in the greatest integer greater than 5. If this is greater than 5, so the integer will be 6 only, right? So mod x -1 greater than equal to 6. In the integral part, we can say, or mod x greater than equal to 7, or mod x -7 greater than equal to 0. This is possible if we are saying this is greater than 7, we are going, and less than -7. Minus infinity to -7, union 7 to infinity. Okay, then it has to go for greatest integer cos x minus greatest integer sin x whole is in the under root. So this quantity must be greater than 0, or we can say this quantity greatest integer cos x minus greatest integer sin x must be greater than 0, not equal to 0. Means greatest integer cos x greatest integer cos x greater than greatest integer sin x. एक मिनट, क्या I have a doubt in fourth part. क्या fourth part में क्या doubt है निनार? Do it fast बेटा. हाँ सर, वो समझ नहीं आ रहा था डोमेन का उसका कैसे अरेंज कर। कौन सा? सर वही जो आप अभी डिस्कस कर रहे हो, फोर्थ पार्ट। अच्छा, अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, अरे तो करने देना उसे तो. Greatest integer cos x greater than greatest integer sin x. The best part इन क्वेश्चन के लिए, बेस्ट पार्ट आपके लिए ये रहेगा कि do one thing, draw the graph, right? This graph, what I'm getting, कुछ ऐसा, right? This is for cos x, right? 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, and 2 pi, right? This is the graph for greatest integer of cos x. Now for sin x. Right? For sin x. The yellow one is for sin x.
एग्जैक्टली सर। अब मुझे केवल इतना ही यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि कब मेरा ब्लू वाला ग्राफ जो है, ब्लू जो शेडेड है वो येलो वाले से ऊपर है, ब्लू जो है वो येलो वाले से ऊपर है। तो एक तो मुझे पॉइंट मिला 0, ब्लू से ही लिखता हूँ। एक तो मुझे पॉइंट मिला 0, राइट। और दूसरा पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 3π/2 से लेके 2π, राइट। एग्जैक्टली 3π/2 पर भी यू कैन से कि ब्लू वाला मेरा ऊपर ग्राफ जा रहा होगा, और 2π पर तो ऑब्वियस सी बात है 0 में ले ही चुका हूँ, तो 2π ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता। 0 बिना लिए ये लेके इसमें 2n π अगर मैं ऐड कर दूं तो जितनी वैल्यूज है सबके सब अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ग्राफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस तरह की क्वेश्चंस में। फुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। लेकिन क्वेश्चन में मेन अब यहाँ पर जब बात आती है, जब हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी के ही अलग अलग नेचर के ही फंक्शन हमारे पास आ जाए, एक sin x है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है जो पाई 2π 3π π/2 रहता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज पर रहता है लाइक 6 और 35x - 6x² गिवन है। तो दोनों के अलग अलग नेचर है। अब इन दोनों के अलग अलग नेचर को कैसे हम डील कर सकते हैं वो देखते हैं, राइट। सही सर फोर्थ का आंसर क्या था? फोर्थ का आंसर 3π/2 से 2π आ रहा था एक इंटरवल, और एक आ रहा था 0 आ रहा था बेटा ब्लू वाले ग्राफ सर में। वो ग्राफ रिपीट करेगा तो फिर उसका 2nπ + 3π/2 आएगा। सर देख रहे होगे तुम, यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है इस पे। हाँ सर समझा। हाँ, अब यहाँ पर sin x भी है और 6 + 35x - 6x² है, राइट। यहाँ पर फर्स्ट केस अगर sin x का मैं ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि sin x को >0 होना चाहिए, एंड सेकंड केस में 6 + 35x - 6x² जो है उसे भी >0 होना चाहिए। ये न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं आ रही, राइट। इसे रीराइट करूं 6 + 36x - x - 6x² >0, 6 1 + 6x - x 1 + 6x >0, 6 - x 6x + 1 >0, राइट। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये <0 आ जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, एंड ये न्यूक्लियर साइन चेंज होके प्लस होगा। ये आ गया 1/6 माइनस ऑफ 1/6 से लेके 6 के बीच की जितनी वैल्यूज है उस पर वर्किंग होगी, -1/6 से लेके 6 के बीच की पूरी वर्किंग, राइट। नाउ सी, अब 1/6 से 6 के बीच की पूरी वैल्यूज को कैसे हम लोग डील करें उस पर देखो ना। तो पहले हमने क्या किया कि एक एक्सेस में हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कहीं यहाँ पर -1/6 आ रहा होगा, एंड ये पाई है, ये 2π है, तो 2π के कहीं यहाँ पर 6 आ रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे जो इंटरवल देखना है वो 1/6 से 6 है, तो इसी इंटरवल के बीच में ये देखना है कि sin x > कब हो रहा है, राइट। इन दोनों चीजों को अगर मैच कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि -1/6 से 6 के बीच में ये कब >0 हो रहा है, मतलब x एक्सिस के ऊपर कब ग्राफ बन रहा है या x एक्सिस पर ग्राफ कब बन रहा है, राइट। तो इस पूरे इंटरवल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 से पाई में ऐसा इक्वेशन जा रहा है, इसमें कोई 2nπ ऐड करने की मुझे जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके डोमेन को इसने नीचे जो हमारे पास गिवन था उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ आ रहा होगा 0 से लेके पाई तक। आई गेस ओके टू एवरीवन।
सर आप पहले के आंसर्स दिखा सकते हो ये सब से? नहीं बेटा, इसी पर रब करते हुए मैंने शायद किया है ना। कौन सा बोलो तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अच्छा नहीं, हाँ ये सही है सर, और फिर इसके पहले वाला। मैं अभी तो बोला कि उसी के ऊपर में मैंने सबके सब किए हैं क्वेश्चन। अच्छा आप क्वेश्चन बोलो कौन सा था। यू आर नॉट गोइंग थ्रू दिस। मैं साथ साथ में मेरे नहीं कर रहे हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली हो गया था सर, मैं एक कुछ वेरीफाई कर रहा था, उसके बीच में आपने पहले 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो वो चेक नहीं किया मैंने। अच्छा, कौन सा बोलो, कौन से में मिस किया है आपने? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई हेल्प करो, चैट में लिख दो या राइट। आगे बढ़े। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलें प्लीज। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर साइन लास्ट मतलब ये क्वेश्चन जो अभी चल रहा है वो उसको लास्ट बोल रहे हो? हाँ सर यही वाला। हाँ हाँ सर, इस क्वेश्चन में अगर साइन एक्स और नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दोनों ही लेस देन 0 हुआ तो भी वो नहीं हो सकता था। तो बेटा मैं नहीं समझा, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। तो मतलब कि जो अगर साइन एक्स लेस देन 0 हुआ और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो भी 0 हुआ सर, तो रूट के अंदर का पार्ट तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग उसको निकाल सकते ओके, आपने क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा? हैं। अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट 6 प्लस 35 एक्स माइनस 6 अंडर रूट साइन एक्स जो है इंडिविजुअली केवल एक अंडर रूट साइन एक्स की बात करो। साइन एक्स नेगेटिव होने पर क्या देगा? आई एम नॉट है मतलब सर बताएं, मतलब नेगेटिव हो गया तो वो डोमेन में रहेगा। डोमेन नहीं होगा तो उसके लिए रियल वैल्यूज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसे हमें डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा शुरू पे ही ना। वो हमारे पास केस ही नहीं आएंगे, वो तो हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमने बात कर ली जब हमें इक्वेशन चाहिए होंगे या अंडर रूट के लिए काम कर रहे हों ना। डोमेन की बात हो रही हो, डोमेन में मैंने पहले भी बोला काफी सारे वेरिएशन है, काफी वेराइटी जाएंगे, राइट। तो अब थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, एवरीवन केयरफुल। क्वेश्चन अब थोड़े बड़े जाने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2x - 1।
First is x minus 1 mod 7 minus x, or x minus 7 mod 1, 7, and 6. X minus 1 mod is in the greatest integer. The 7 minus x या x minus 7 एक ही बात है, is in the mod, is in the greatest integer, right? ये दो given है मेरे पास, and not equal to 6. मुझे चाहिए कि this must not be equal to 6. तो ऐसा करता हूँ कि पहले equal to 6 निकाल लेता हूँ, जो आंसर आएगा उसे मैं बोलूंगा कि that's not required, right? So mod को ओपन करने के लिए we know that हमारे पास तीन केसेस आएंगे, 1, 6, if 1, 7, if the value is greater than 7. So if the value is greater than 7, the x value of x is greater than 7. So both the mod will be open as x minus 1 and x minus 7. This is x minus 1 greatest integer, case first, right? X greater than equal to 7, right? Plus x minus 7 is in the greatest integer is equal to 6. We know that if x is there and this is an integer, so we can write this minus 1 and greatest integer x minus 7 is equal to 6. So twice of greatest integer x is equal to 7 plus 8, 6, 14, or greatest integer x is equal to 7. So greatest integer x is 7. So we can say कि like x lies between 7 to 8. Right? First ये मेरे पास आया x ये लाई करेगा तो this will be equal to 7. मतलब ये वाली values को मुझे discard करने हैं. ये पता चला कि 7 to 8 x की values नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जब x की value 7 to 8 होगी this will be equal to 6 और वो मेरे आंसर को खराब करेगा और मेरा आंसर गड़बड़ होगा, right? First case. Coming into second one, right? In second one, if x lies between 1 to 7, 1 to 7, so x minus 1 will be same as x minus 1 का greatest integer plus 7 minus x is in the greatest integer is equal to 6. So this will be x का greatest integer plus minus x का greatest integer plus 7 minus 1, 6 is equal to 6. 6 cancel out. Greatest integer x plus greatest integer minus x is equal to 0. Wow, good thing. So greatest integer x or greatest integer minus x is equal to 0, right? If x is positive number and integer, this is possible. X is a negative number and integers, this is possible. At 0, this is possible. But if I'm saying x is any fraction, not integers, right? Like 1.25, I'm taking to 1.25, the greatest integer will be 1, and minus of 1.25 will be minus 2. So minus 2 plus 1 will be minus 1. That must not be equal to 0, right? If you are taking any negative or positive fractions, that's not must not be equal to 0. So from this we are getting x belongs to integers between 1 to 7. On contrary, we should say x must not equal to integers between 1 to 7, means we are not taking the values 1, 2, 3, 4, 5, 6 already taken. Key we have not to take 7, right? Now the third case, when x less than 1, right? Third case, x less than 1. For x less than 1, both will be opening with the negative 1, right? 8 minus twice of greatest integer minus x is equal to 6, or twice of greatest integer minus x is equals to 2, or minus x is in the greatest integer is equal to 1, or minus x lies between 0 to 1 or multiplying with minus sign. So x lies between minus 1 to 0. At 0 it will be 0, so we will not take this equal to 0, right? So x lying between minus 1 to 1, x close minus 1 to 0. So in this case again we are saying that this must be going to, right, they're going to 0. So this will be, I guess, plus sign, right?
So we are getting this minus sign. Just a minute, beta. No? Just a minute. So this is minus sign. So we are going with this as x is lying between 0 to 1, right? X is lying between minus x, right? Minus x lying between minus 1 to 0 multiplying with x. So x lying between 0 to 1. 0 is open, 1 is right. Right. So from these three, what we are getting, right? From these three, we are getting x must not be 7 to 8 पे नहीं आना चाहिए, 0 to 1 पे नहीं आना चाहिए. Means between 0 to 1 not possible. Integers 1, 2, 3 up to 7 not possible, and 7 to 8 not possible. So our answer would be minus infinity to 0, right? Or we can write this as r minus 1, 2, 3 up to 7, as well as union 0 to 1, maybe open or close, both we can write क्योंकि पहले ही मैंने minus कर दिया है, union 7 to 8. How many of you got this right? Please in my chat you can give yes. सम्यक छा गया तू तो, very good. Sampriti, very good. Bhaumik, very good. सिर्फ 3. Svetang, very good. Ariman, you missed union sign. यार तू मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है और तू यूनियन साइन भूल रहा है. मोदी जी तो इतना अच्छा यूनाइट कर दिए सबको. प्रणय, वेरी गुड. मोबाइल तो नहीं देख रहा प्रणय? ठीक है, वेरी गुड. और कोई? देवेश, वेरी गुड. कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा पेशेंस के साथ है. सौम्या देव, कहाँ रह गया तू? सर मैं कुछ एक्सक्लूड करना भूल गया सर, मैं देखा नहीं. अच्छा, ठीक है. सही. ये सब ना बड़े अच्छे क्वेश्चन है. मैं इसके सेट ऑफ क्वेश्चन आज आप लोगों को दे रहा हूँ. थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना ये काम नहीं बन पाता है ना. तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट? दिस वाज द फर्स्ट वन, राइट? सेकंड क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए ही बना होता है. एंड ये परेशानी खत्म करा जाए कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर एक्स माइनस 4, राइट? कई तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर एक्स प्लस 4, राइट? सबसे अच्छा तरीका इसमें जो हो सकता है, वेरी गुड आशीष, ग्राफ ना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट फिर भी ग्राफिकल कुछ आइडिया लेते हैं, अलजेब्रा कुछ अपनी तरफ से लगाते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना. चलो मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं, देखना सभी लोग, राइट? ये मैंने एक एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ बना दिया, राइट? अच्छा रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी कर लूं तो भी चलेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने का मतलब है ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है उसे कुछ नीचे लाना पड़ेगा, तो नीचे मैं ले आया, राइट? तो दिस इज 0,4, राइट? यहाँ जो 0 हो रहा है वो 2,0 है एंड माइनस 2,0. ये 2 पॉइंट है जहां पर ये 0 हो रहा है, राइट? मैं 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया. नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों चीजें आपके पास है. नाउ वी आर ड्राइंग कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है. ये ग्राफ मेरे पास चले जा रहे हैं एंड दिस कुड बी, ये ग्राफ जा रहा होगा, राइट?
लेट्स सी कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं या ग्राफ फ्रेम किया जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ 0 to 1, 1 to 2, ऐसा फील हो रहा है कि 2 to 3 के बीच में इसे एक कट करना चाहिए। मे बी ना कर रहा हूं, मे बी कर रहा हूं, राइट। अब यहाँ पर मैं बहुत श्योर नहीं हो पाऊंगा क्योंकि ये एक समझ ही रहे हो मैन मेड ग्राफ है, और दूसरा मेरे को लग रहा है कि -1 से -2 के बीच में एक जगह पर कहीं ये कट कर रहा है। ये दो पॉइंट मेरे को एक सस्पिशियस लग रहे हैं कि इन दोनों पर ये कट कर सकता है, राइट। अगर ये दोनों पॉइंट अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे लिए इजी है। क्या इजी है कि ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ रेड वाला, ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है इस समय तक, राइट। अगर ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ मेरे पास है, राइट, एक्स स्क्वायर का, वो कहीं ना कहीं मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले के सभी जगह पर नीचे आ रहा है या इक्वल टू हो रहा है, राइट। लेकिन उसके अलावे अगर मैं इस इंटरवल के पीछे जा रहा हूं या इस इंटरवल के आगे जा रहा हूं तो मेरे को दोनों ही तरफ से मैं 100% श्योर होके ये बोल पा रहा हूं कि दोनों ही वैल्यूज मेरे पास ग्रेटर वैल्यूज के लिए जा रहे हैं। आई गेस सभी को क्लियर होना चाहिए ये बात नाउ। लेकिन अब वो पॉइंट निकालने की बात है कि एग्जैक्टली वहां पर वो कट कर रहा है या नहीं। तो अच्छी बात क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक अलजेब्रा अपना यूज करें, वही मेरे लिए काफी अधिक काम कर जाएगा। जैसे लाइक आई एम फीलिंग की वैल्यूज लाइंग बिटवीन 2 to 3, राइट। तो मैंने एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले लिया क्योंकि यहाँ पर उसे इक्वल टू होना पड़ेगा। इक्वलिटी के लिए मैंने कहा इफ द वैल्यूज लाइंग बिटवीन 2 to 3, लेट्स सपोज इट्स लाइंग बिटवीन 2 to 3, अगर ये 2 to 3 पर लाई कर रहा है तो दिस वैल्यू विल बी 2, राइट। ये वैल्यू 2 होगी, राइट। ये 2 हो गई, वो 4 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू +-√6। अब +-√6 को मेरे को ये सोचना होगा, ओके वी अज्यूम दैट द वैल्यूज लाइंग बिटवीन 2 to 3, और √6 जो है ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। मतलब ये वाली जो पॉइंट है मेरे, ये x की वैल्यू √6 पर तो ये कट कर ही रहा है, ये श्योर है। Similarly, what I'm saying कि second time I'm saying कि maybe this value is intersecting the graph between -2 to -1. If x is lying between -2 to -1, so x square -4 is equals to, this will be -2, right? -2 से -1 में तो greatest integer will be -2 only. So x square is equals to x square is equal to 2 or x is equals to +-√2, right? So if value of x is lying between -2 to -1, -√2 भी मेरे को लग रहा है कि ये मेरे कंफर्टेबल होने वाली वैल्यू है, ये -√2। सो -∞ से -√2 तक एंड √6 से लेके इन्फिनिटी तक, ये दोनों मेरे पास आंसर्स हैं जिस पर मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होगा। इट्स क्लियर टू ऑल एवरीवन? नोट डाउन प्लीज, आराम से नोट डाउन का तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन थर्ड, लॉग के अंदर जो गिवन है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अच्छी बात क्या है इसमें, ये जो गिवन है मेरे को लॉग के अंदर, राइट, ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि अगर ध्यान से दो वो x-1 का होल स्क्वायर +2 है, बट केवल 2x - 1 को मुझे ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, मतलब x ग्रेटर देन हाफ आ गया। पहला चीज तो मेरे पास यही आ गया। अब ये पूरी क्वांटिटी भी हमने बात की थी कि लॉग जो भी रहेगा, जो भी चीजें हैं हम लोग को शुरू से अंत तक साथ साथ में लेके चलने हैं, राइट। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो मेरे पास आ रही है, ये क्वांटिटी भी x के लॉग के अंदर है। तो लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कहा कि log बेस 2 x स्क्वायर -2x + 3 अपॉन log a माइनस log b इज log a by b। ये अपॉन में 1/2 पावर का मतलब यहाँ पावर 2 हो गया, ये 2 अंदर चला गया, ये 4x स्क्वायर -4x + 1।
ये क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 2 to the power 0 1 हो गया, राइट। ये दिस इज कमिंग एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन, अगर ये क्वांटिटी 0 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू हाफ हमने ले ही लिया है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस कमिंग एज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0, राइट। एक ये भी आ गई, और इसके बाद वाले को भी मैं यूज करता, अगर ये पूरे को, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया सबसे पहले 3 to the power 0 1 होगा, एंड ये क्वांटिटी मेरी 2 हो जाएगी। ये 2 होने का मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सो दिस कमिंग एज x square minus 2x plus 3 greater than 8x square minus 8x plus 2. This is 7x square minus 6x minus 1 less than 0. x greater than half है, और दूसरे कंडीशन भी मेरे पास आए थे, राइट, दोनों कंडीशन के लिए। यहां से x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, 6 plus minus 64, 8 by 14, 1, एक फैक्टर हो ही रहा है एंड सेकंड साथ दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ सर, जो सबसे ऊपर लिखा है वहाँ पे ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ना? 3 to the power 0 पहले होगा ना बेटा, 3 to the power 0 वाला सर 1 अंदर हो गया, फिर 2 to the power 0 होगा ना, 2 to the power 0 होगा ना। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। आपके पास लिखा हुआ है log base 3 log base 2 z greater than 0। मैं पहले 3 को ले जाऊंगा उधर, तो ये आएगा log 2 greater than 1, फिर z greater than 2 आएगा ना। हाँ सर, समझो। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको आ रहा है, कहाँ गया मेरा, यहाँ पर आया, राइट। x greater than हाफ था ही मेरे पास, और ये यहाँ से लेके -1/7, तो यहाँ से ये लेस देन आ रहा था, -1/7 to 1 आ रहा था, और हाफ से ग्रेटर आ रहा था, तो हाफ टू 1 आ रहा था। बीच वाले को आप चेक कर सकते हो। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। राइट, फोर्थ वन, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ वन। कई बार आपको ये भी परेशान करने को दिया जाएगा, या इस तरह के अरेंजमेंट होंगे, राइट। अब इसमें काफी सारे मैंने नंबर्स दे दिए, लेकिन नंबर जो गिवन रहते हैं, जो एफएक्स में अगर इसे फंक्शन अज्यूम कर रहा हूं, राइट, एफएक्स इस फंक्शन को अज्यूम कर रहा है, फैक्टराइज होता है, राइट। हाँ, रुक जाता है। एफएक्स इस फंक्शन को अगर अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या क्या इसमें होते हैं जो बहुत आसानी से वर्क कर जाएंगे ना। सबसे पहली चीज, अगर ध्यान दो कि मुझे ये पता करना है कि x बिलोंग्स टू r में ये क्या होगा, एक एक कर कर उस पर काम करता हूं। अगर मैंने कहा x के जगह पर -x वी आर पुटिंग, अगर x के जगह मैंने -x पुट किया, तो ध्यान देके देखोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ गया, राइट। पूरा का पूरा फंक्शन मेरा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जितने भी ऑड पावर्स हैं, ध्यान देके देखो उसके सामने माइनस साइन है, तो f ऑफ -x मैं लूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। अब बात हो गई अगर x पॉजिटिव होगा तब, तो x पॉजिटिव होगा तो उसमें दो बातें होंगी। फर्स्ट केस, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1,
राइट। अगर वो 0 to 1 में लाई कर रहा है तो मैं अगर इसे ऐसा लिखूं 0 to 1 में, जीरो टू वन में वी नो दैट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यूज कम होती जाएगी, राइट। और दूसरी मैंने यहाँ पर ये रखा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, राइट। दो ही यहाँ पर हम लोगों को बातें करनी है, राइट। 1 से ग्रेटर के लिए एंड 0 to 1 के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, लेट्स सी। We can factorize this into two parts. One is this one and second is this one. But when this will be equal to 0, it's very difficult. But ये sure है कि एक जगह पर इसे छोटा सा नेगेटिव होना है, right? And अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बन पाता मेरे पास कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं बोलता x belongs to r. बट यहाँ पर ये होगा, बट कैलकुलस में भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं होगा जिसमें वी कैन से कि वेयर एग्जैक्टली दिस विल बी 0. कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में वी कैन से कहां कहां पर ये पॉजिटिव होते जा रहे हैं ना, राइट। सो ये एक मैंने आप लोगों को एक तरीके के क्वेश्चंस करवाए अभी तक, राइट। सर क्या बोला आपने, आप वापस बोल सकते हो? इनवर्स ट्रिगो का टेस्ट आज रख रहा हूं शाम को। हाँ आप लोगों का आईडी वही रहेगा जो आईडी है आपका, एंड 1 2 3 4 5 6 जो आपका पासवर्ड था, सेम पासवर्ड। कल शाम को रख सकते हैं। Note it down, everyone. Okay. चलो नेक्स्ट क्लास आपके अभी आने का है, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी एक जन जरूर रख लेना इन क्वेश्चंस को। What I'll do कि set photos, right? Okay, ये क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। हाँ, ओके, थैंक यू, गुड बाय।